वो पॉइंट क्या था कि वो पॉइंट दैट इज दैट इन rhombus, if this is your rhombus, okay, and this side is A side, this is B, this is C, this is D. इनको हम वर्टिस कहते हैं, ओके, A वर्टिस, B वर्टिस, C वर्टिस, D वर्टिस, and this is known as side. AD is the side, this is CB side, AB side, okay. अच्छा, तो रोम्बस में क्या हमने पहले भी पढ़ा था कि आपके डायगनस जो होंगे दैट्स विल बी एट 90 डिग्री, ओके, लाइक जो डायगनस एंगल्स बनाएंगे दैट्स विल बी 90 डिग्री, ये हमने रोम्बस में पढ़ा था. इन पैरेललोग्राम आपके जो एंगल होगा डायगनस का वो 90 डिग्री नहीं होगा, बट इन रोम्बस दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. अच्छा, रोम्बस में एक दूसरा पॉइंट जो हम मिस कर रहे थे, वो पॉइंट ये पॉइंट था कि आपका ये एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, like this diagonal line will bisect this angle, okay, like if this is 30 degree then this angle will also be equal to 30 degree, okay. Similarly this angle, if this angle is alpha, this angle will be equal to alpha. So ये दो एंगल इक्वल होंगे एक दूसरे के. इसी तरह आपकी ये एंगल will be equal to this, like one angle 1 will be equal to angle 2. इसी तरह आपके ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे, एंगल 3 will be equal to angle 4. So now let's move toward this question. Question number 1. The question is the figure show a rhombus. आपको मेरे वॉइस क्लियर आ रही है या गूगल मीट जी पे कर ले क्लास? आ रही है मुझे. ओके, आ रही है, ओके. The figure show a rhombus ABCD. Okay, ABCD is the rhombus. ACD is 32 degree. AB is produced to E such that AC is equal to CE. AC is equal to CE. Okay, acha, find angle ABD. ABD, we need to find this angle. Acha, this is rhombus. Okay, and this angle is 32, so it means that this angle will be equal to 32. This angle will also be equal to 32. This angle will be 32 and this angle will also be equal to 32. अच्छा, this angle will be equal to this angle because this is the parallel lines और ये एंगल आपका corresponding angles है. So it means that this angle will be equal to 32 plus 32. So your this angle will be equal to unknown angle plus 32 plus 32 is equal to 180 degree. So your unknown angle will be equal to 180 minus 32 minus 32. That's equal to 116. Okay, so this angle will be equal to 116. Got it? Yes. Okay, the next question is we need to find a BCE angle. BCE angle, we need to find this angle. अच्छा, अब यहाँ पे देख लो तो we first of all let's consider this triangle. This is the isosceles triangle. और isosceles triangle में क्या होता है कि आपका this angle will be equal to this angle. ओके, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो आपके ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. सो इट मीन्स कि दिस एंगल इज 32. ये एंगल आपका 32 है, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 32. अच्छा, अब आ जाते हैं. सो दिस एंगल इज 32 प्लस 32, दिस इज 32 एंड दिस इज अननोन एंड दिस इज द ट्राइंगल. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, अननोन प्लस 32 ये 32 आपका ये वाला आ गया, ये बाकी दो 32 एंगल्स आपकी ये आ गए. सो योर अननोन विल बी इक्वल टू 180 minus 32 minus 32 minus 32, that's equal to 84. So your BCE angle will be equal to 84.
गॉट इट? Yes. इजी है, बस लास्ट टाइम थोड़ा सा वो पॉइंट को मिस कर रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन सा हो रहा था. Now question number 2, the figure show a rhombus. Okay, this is also rhombus. ABCD, where the diagonal AC and BD intersect at E, find the value of X. Okay, this angle is X plus 45, so it means that this angle will be equal to X plus 45. It means that this angle will be equal to 3x plus 13. Find the angle X. Okay. ओके यहाँ पे देख लो. सो रोम्बस में आपके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. ओके, एंड this line is parallel to this line, so the corresponding angle of this will be equal to this. ये दो आपके corresponding angles आ रहे हैं. ओके, यहाँ पे देख लो तो ये लाइन आपका पैरेलल है, and this line is crossing these two parallel lines, so this angle will be equal to this angle, and this angle is x plus 45 plus x plus 45. Okay, this angle is x plus 45 and this angle is x plus 45. So total angle आपका x plus 45 plus x plus 45, and this angle is the opposite angle of this one. तो ये आपका 3x plus 13 and 3x plus 13. So it means के plus 3x plus 13 plus 3x plus 13 will be equal to 180, क्योंकि आपका यहाँ पे देख लो ये आपका 180 डिग्री बन रहा है. सही. सो x 1 2 3 4 5 6 7 8x आ जाएगा. 45 plus 45 is 90, 100 110 116 आ जाएगा. Okay, that's equal to 180. So 180 minus your x value will be equal to that's equal to 8. So the value of x is 8. Got it? अच्छा, यहाँ पे हमने आई थिंक यहाँ तक किए थे. इंटरमीडिएट लेवल आज करना है. क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने लास्ट टाइम किया था. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अच्छा, ये आपका रोम्बस है कि नहीं? दिस इज नॉट द रोम्बस, क्योंकि रोम्बस में ये एंगल आपका 90 डिग्री होता है. उन्होंने आपको एंगल गिवन है, सो इट मीन्स कि ये आपका रोम्बस नहीं है. अच्छा, स्क्वायर है. दिस इज स्क्वायर. ओके, सो इट मीन्स कि दिस एंगल इज 90 डिग्री. अच्छा, ये डायगोनल नहीं है. ओके, ये पहले आया हुआ है. दिस इज द डायगोनल. like your this line will be the diagonal line. अच्छा, आपका जो स्क्वायर होता है ना, दिस इज द स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे आपका जो ये लाइन डायगोनल जाएगा, ये आपके मिड पॉइंट लाइक दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये आपका 45 और ये 45 ये भी बाइसेक्ट करेगा उसी तरह. ओके, सो दिस टोटल एंगल इज 90, दैट्स विल बी गो टू दिस एंगल. ओके, 90 इन स्क्वायर. ओके, सो आपका ये हो जाएगा, यस, इन स्क्वायर आपका ये 45 डिग्री एंगल हो गया. ओके,
और इन्होंने यहाँ पे 82 दिया है, दिस एंगल इज 82 क्योंकि ये डायगोनल नहीं है। सो इफ़ यू ड्रॉ इट लाइक दिस तो ये आपका 90 डिग्री बनेगा फिर। ओके, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री बनेगा इन स्क्वायर। और जो आपका रेक्टेंगल होता है, सही है, तो रेक्टेंगल में आपका जो एंगल होते हैं ये दोनों एंगल इक्वल नहीं होंगे। ओके, लाइक आपका रेक्टेंगल जो होगा दैट्स विल बी लुक लाइक दिस, तो इसमें आपका दिस विल बी डायगोनल, और रेक्टेंगल में आपका 90 डिग्री भी नहीं बनेगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री भी एंगल भी नहीं बनेगा, और ये आपका 45 डिग्री नहीं होगा, ये एंगल डिफरेंट हो गए इन रेक्टेंगल। ओके, स्क्वायर में आपका इक्वल होंगे, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। और अगर रोम्बस हैं तो रोम्बस में भी इक्वल होंगे, लाइक आपके ये दोनों एंगल्स 45 डिग्री तो नहीं होंगे लेकिन वो इक्वल होंगे एक दूसरे के। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख लो तो आपका ये 45 डिग्री एंगल हो जाएगा, एंड दिस इज अननोन एंड दिस इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इफ दिस इज 82 तो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 82, तो आपका ये ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल में अननोन प्लस 82 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो योर अननोन एंगल हो जाएगा 180 माइनस 82 minus 45, that will be equal to 53. So this unknown angle is 53. So आपका B plus 53 is equal to 180 degree. So now B angle will be equal to 180 minus 53, which is equal to 127. So B angle will be equal to 127. Now we will need to find the A angle. तो अब इस ट्राइंगल को कंसिडर कर लेते हैं। As we have this angle, unknown angle is 52, this total angle is 90 and A. So A plus 90 plus 52 is equal to 180 डिग्री हो जाएगा। Your A angle will be equal to 180 minus 90 minus 52, that's equal to 38. तो आपका A एंगल 38 हो जाएगा। अच्छा, पार्ट B। Okay, so in this question we will need to find the unknown. Okay, this is also the square. Okay, so this angle will also be equal to 45 क्योंकि ये आपका लाइन डायगोनल है, ये भी आपका 45 होगा। ओके, ये भी डायगोनल है। सो योर C plus 45 is equal to 180 degree. So your 2C will be equal to 180 minus 45, which is equal to 135. So your C will be equal to 135 divided by 2, that's equal to 67.5. So आपका C एंगल जो होगा that's equal to 67.5. अच्छा, स्क्वायर में आपका ये एंगल कितना होगा? 90. या 90। तो आपका D प्लस C विल बी इक्वल टू 90, तो आपका D एंगल विल बी इक्वल टू 90 माइनस 67.5, तो आपका D एंगल विल बी इक्वल टू 22.5 हो जाएगा। सारे अननोन्स फाइंड हो गए। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रोम्बस। तो रोम्बस में आपका A विल बी इक्वल टू 114 और आपका दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ओके, और यहाँ पे देख लो तो इसको आप इस तरह एक्सटेंड कर लो तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो आपका ये B प्लस B हो जाएगा। सो B प्लस 114 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। दिस इज आल्सो B। ओके, ये रोम्बस है, तो रोम्बस में हमारे पास दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। इसी तरह ये एंगल भी आपका 38 है, तो वही सेम कंसेप्ट अप्लाई कर लो।
38 प्लस 38 विल बी इक्वल टू सी प्लस सी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ओके, फिर आपका दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज क्रॉसिंग दिस टू लाइन्स, तो आपका c प्लस सी आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो 2c यहाँ पे आ जाएगा, 2c प्लस डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो आपका ये हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द रेक्टेंगल ओके वेयर द डायगोनल AC intersect BD at E point, given that BEC is 52 degree, find the angle ADB. We need to find this angle. Okay, this is the rectangle, so it means that this angle will be 45 degree. Okay, so it means that your this angle will be equal to 90 degree. Okay, we need to find this angle, and in rectangle your these two lines will be equal to each other. आपका ये जो होगा AC will be equal to DB. ओके, और ये मिड पॉइंट होता है, तो आपका ये हाफ ऑफ दिस विल बी इक्वल टू दी हाफ ऑफ दिस। ओके, लाइक DE will be half of AC, so your DE या EB, that will be half of AC DB, and EC will be equal to half of AC। अच्छा, तो अब हमने पढ़ा था कि AC will be equal to DB लाइन, तो आपका जो DB होगा that will be equal to 2 times EB, that will be equal to your AC will be equal to 2 times EC, so this 2 will cancel by this 2, so it means कि EC line this line will be equal to EB line this line, so ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाता है। तो इट मीन्स कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, सो लेट्स से दिस इज अननोन, तो दिस इज आल्सो अननोन, तो आपका ये एंगल फाइंड हो जाएगा। सो ये आपका आ जाएगा 52 प्लस अननोन प्लस, या आप इस तरह कर लो कि दिस इज द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ऑफ दिस वन एंड वी नीड टू फाइंड दिस एंगल अननोन एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू अननोन एंगल, क्योंकि ये भी आपका ट्राइंगल बन रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो अननोन प्लस 52 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। सो योर अननोन विल बी इक्वल टू, इनको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द आंसर ACD। ओके, दिस एंगल, तो यहाँ पे भी आपका इसी तरह होगा, आपका ये एंगल फाइंड हो गया एंड वी नो दैट दिस एंगल टोटल एंगल इज 90, तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, that will be equal to this angle, so your unknown 1 plus unknown is equal to 90, so ये तो आपने फाइंड कर लिया है पार्ट ए में, तो unknown 1 आपका आ जाएगा एंड that will be equal to this angle, तो ये आपका ACD एंगल भी फाइंड हो जाएगा।